ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जहाँ भी हैं इस दुनिया में, वेर एवर यू आर, टेक माई गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एंड माई प्रणाम, माई रेस्पेक्ट टू ऑल ऑफ माई फैमिली। PPY, यस। Let all the people join. And Om Namah Shivaya, Ashok Babu, how are you? Today I seen your haircut is very good. You are so talented. I'm very happy. Very good, very good. Mm. How are you all? संजीव जी कैसे हैं आप? वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो, ओम नमः शिवाय नीलम जी, ओम नमः शिवाय संजीव जी, वेरी गुड। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय संजय बाबू कैसे हैं? वेरी नाइस। आज के इस वक्त में कुछ चीज़ मैं आज चर्चा करूँगा और सब लोग हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग एटलीस्ट ध्यान के बहाने सारे लोग मिलते हैं एंड एक छोटी सी चर्चा होती है, छोटा सा ध्यान होता है और ध्यान के बाद हम अपने निद्रा में जाते हैं और दिन की जो विदाई है इससे अच्छी और क्या हो सकती है। ओम नमः शिवाय मीनाक्षी जी, ओम नमः शिवाय, हाउ आर यू ऑल। हम बाय अपने पूरे दिन को इससे अच्छा और क्या कर सकते हैं। थैंक्स या ग्रैटिट्यूड अपने पूरे दिन को इससे अच्छा और क्या कर सकते हैं। बाय रिमेम्बरिंग आवर ओन सेल्फ हु वी आर। सुमिरन करते हुए, सुमिरन में किनका? अपने स्वयं का, और स्वयं मतलब द स्वयं ऑफ सेल्फ इज द स्वयं ऑफ यूनिवर्स, पूरी ब्रह्मांड का। उनको थैंक्स करके, उनको ग्रैटिट्यूड करके सारे दिन जो अच्छा गुजरता है, एक एक पल के थैंक्स के लिए, एक एक मोमेंट के लिए हम लोग ध्यान करते हैं, साइलेंस में जाते हैं, उसी पे मेडिटेट करते हैं एंड फाइनली हम लोग सोने चले जाते हैं। तो nothing can be a best way to ending your day by remembering who you really are and chanting Om Namah Shivaya and chanting your true self, who you really are, and paying your gratitude to the source. When you paying to your gratitude to your source, you are coming closer to your real existence, and this is the best day. Every night before you go to bed, we just do small meditation to remembering who you really are and thanking God, thanking the supplier, thanking the source. This is the best way we can maintain our mind, our body and our soul. This way we can maintain our mental health, and this is the best way I think to doing a meditation every day, every evening. And the person who is joining from the other world, for their, this is the best time to start their day, to remembering who you really are and paying gratitude and thanks to God for everything who has given you this thing. Now I would like to discuss one thing. See, few days back, means 2 months, 3 months back, if somebody would have been told you that ozone layer of this universe is filled, it's now complete, would you have been believed this? No, because it was seems to be a very impossible. मैं हिंदी में बता रहा हूं कि अगर 3 या 4 महीने पहले आपसे अगर कोई ये कहता कि जो धरती के ऊपर, हमारे ऊपर, धरती के ऊपर जो ओजोन लेयर है, वो ओजोन लेयर जो क्षतिग्रस्त हो गई थी, जो ब्रोकन हो गया था, टूट गया था, वो उसकी लेयर में बहुत सारी छेद हो गए थे, वो भर जाएगी, तो आपको क्या बिलीव होता कि अभी अचानक से हो जाएगा?
तो आपको बिलीव नहीं होता, क्योंकि ये इम्पॉसिबल लग रहा था। इम्पॉसिबल इसलिए लग रहा था बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, because of the race of development of this entire universe. Only because of that we were not even able to imagine that ozone layer is going to cover and it is going to repair and it will be a perfect. It was impossible. But within no second, and you just watching every day what pandemic has done for the entire humanity and this globe. We are listening that ozone layer of this earth, our earth, is repaired, means it has come in the same and perfect position what it should be. तो ये चीज अगर थोड़े दिन पहले, few days before, if anybody would have been told you that ozone layer is going to be filled, we would not have been to believe on this, but it is happening. We are watching it, we are experiencing this. The quality of air, the quality of the sky, the quality of energy in this air, quality of prana into this air, we all are feeling that it is improving. It has improved a lot. It's full of prana, full of oxygen. And when we breathe, we feel the prana, we feel some life is going inside. And when we exhale, we feel that we are taking something from this our globe, from this universe, from this our mother earth. But the same thing, अगर कुछ दिन पहले आपको अगर ऐसा कोई कहता कि ऐसा होने वाला है, ऐसा हो जाएगा, तो हमें बिलीव नहीं होता. तो मेरे इस पूरे प्रकरण में आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि ये होता कैसे है. जब भी प्रकृति को अपनी आप को रिपेयर करना होता है, जब भी अपने आप को रीशेड्यूल करना होता है, जब भी अपने आप को फैक्ट्री मोड में लाना होता है, तो इस तरह की एक कॉन्स्पिरेसी यूनिवर्स करती है जिसमें कि बहुत सारे लाइफ के कॉस्ट पे बहुत सारे अच्छी चीज़ भी हो रही होती हैं और बहुत सारी हार्ट ब्रोकन सिनेरियो भी क्रिएट हो रही होती हैं. तो दो एनर्जी अभी पैरेलल चल रही हैं. यू कैन अंडरस्टैंड कि देयर इज one side of this situation is that you are getting a good and breathing air, everything is renewing, the forest is becoming more greener, the sky is becoming more blue, the whole earth and water is becoming clean, drinkable water you are going to receive everywhere. So this is the most important thing, which with the effort of human it was not possible. जो मानव प्रयास से ये सारी चीजें होना इम्पॉसिबल था. और कितनी सारी फंड इसमें खर्च हो रही थी, गंगा सफाई के लिए, नदी सफाई के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, एयर प्यूरिफिकेशन के लिए, नेचर के प्राण स्वरूप में आने के लिए ये हो नहीं रहा था. लेकिन एक ही झटके में यूनिवर्स जब करवट लेती है तो उसका कुछ कॉस्ट पृथ्वी को चुकाना होता है ना. क्योंकि जिसकी वजह से ऐसी चीज हुई थी, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ द ह्यूमन रेस दिस होल यूनिवर्स वाज एक्सपीरियंसिंग दिस पॉइजनस सिचुएशन अराउंड द ग्लोब, देन when the universe conspired to better the entire system, then human has to pay the cost. इंसान को उसका कॉस्ट पे करना होता है. ये हर युग में हुआ है, हर लाइफ टर्म में हुआ. एवरी एज हैज एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ थिंग्स. तो अभी हर युग की अलग अलग सिनेरियो थी. हर युग में ढेर मौत हुई हैं और उसके साथ सोसाइटी चेंज हुई है. बहुत सारे लॉस हुए हैं, उसके साथ सोसाइटी चेंज हुई है. और अभी भी जो सीन है कि आधी से अधिक धरती पे, ऑलमोस्ट पूरी धरती पे मौत का साया है चारों तरफ. और लोग डरे हुए हैं, समे हुए हैं. किस दिन किस वक्त किसके दरवाजे पे नॉक हो जाए, किसके घर पे ये सिचुएशन क्रिएट हो जाए, यू नेवर नो.
तो जब ये ग्लोबली हो रहा होता है तो ये किसी के साथ और किसी भी वक्त किसी भी समय किसी के साथ हो सकता है, लेकिन पैरेलली यूनिवर्स एक दूसरी डायरेक्शन में पैरेलल एनर्जी में अपने आप को रिपेयर कर रही होती है और यूनिवर्स अपने रिफॉर्म में आ रही होती है, अगर यूनिवर्स अपने फिर से अपने स्वरूप में आ रही होती है। और एक क्वेश्चन आए अभी पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो रही हैं कि आपको विकास चाहिए या इस तरह के नेचर का रिन्यूअल, नेचर का रिफ्रेश होना चाहिए, आपको विकास चाहिए या नेचर का रिन्यूअल चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे लोग दुनिया में दे आर फिलिंग द फॉर्म एंड गिविंग देयर ओपिनियन। हर की अपनी अपनी राय है, कोई कह रहा है मुझे विकास चाहिए, कोई कह रहा है हमें नेचर फिर से वापस चाहिए जैसा था। परम प्राण योग का जो स्टैंड है उसका स्टैंड ये है, हमें दोनों चाहिए लेकिन बैलेंस। ना तो विकास हमें बहुत नेचर के कॉस्ट पे विकास चाहिए और ना तो नेचर के डिस्ट्रॉय होते रहे और हम सारी चीजें बर्दाश्त करते जाएं, या फिर विकास ही सिर्फ चाहिए और नेचर हमें कोई कंसर्न ना हो। हमें दोनों चीज चाहिए लेकिन बैलेंस में चाहिए। हमें जानना चाहिए कि हमारी लिमिटेशंस कहाँ है, हमें जानना चाहिए कि हम कैसे दौड़ेंगे, कहाँ तक दौड़ेंगे और क्या हमारी फाइनल अचीवमेंट है। तो ये चीज यूनिवर्स के जो कम्युनिकेशन है, इस कम्युनिकेशन को मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि कुछ ही दिन पहले अगर आपसे कोई कहता कि ऐसा हो जाएगा तो आप विश्वास नहीं करते, गंगा की पानी बिल्कुल साफ हो जाएगी, आप विश्वास नहीं करते, पूरी प्रकृति रिन्यूअल हो जाएगी, यहाँ से हिमालय दिखेगा, आपको कोई विश्वास नहीं होता। लेकिन सूक्ष्म रूप से प्रकृति, यूनिवर्स आज ऐसी कॉन्स्पिरेसी की कि आज जान के इंटेंशनली आदमी को अपने घर में रहना पड़ रहा है, इंटेंशनली अपने आप को विकास से रोकना पड़ रहा है। मैं कई बार अपने स्पीच में और अपने वर्कशॉप में मैंने बोला है कि विकास जो है वो फाइनली, जो विकास का अंतिम स्पॉट है वो फाइनली डिस्ट्रॉइंग ही है, क्योंकि वो डिस्टेंस एंड टाइम को कम करता है ना। विकास का मतलब क्या, जैसे कि पहले लोग घोड़े पे चलते थे, जहाज पे चलते थे, अभी रॉकेट आ गई, ट्रेन आ गई, तो क्या हुआ इसमें टाइम शॉर्टर हो गया। पहले जो 6 महीने में हम सफर करते थे, अभी 6 मिनट में और 6 सेकंड में हम कर ले रहे हैं। तो विकास हर समय टाइम ड्यूरेशन को शॉर्ट करता है। तो विकास सिर्फ बाहर के टाइम डिस्टेंस को शॉर्ट ही नहीं करता है, लाइफ के भी टाइम ड्यूरेशन को शॉर्ट करता है। तो पहले लोग 200 साल जीते थे, अभी सिमट के 60, 65, 70, 80 पे आ गए। तो ये ड्यूरेशन धीरे धीरे कम हो, जितनी विकास होती चली जाएगी विकास हमें हमारी लाइफ को शॉर्टर करता चला जाएगा। तो हमें चूज करना है कि हमें क्या चाहिए, हमें विकास चाहिए या हमारी अपनी लाइफ चाहिए। तो ये हमें अपनी लाइफ चाहिए, अपना जीवन चाहिए, अपनी प्रकृति चाहिए, अपनी खूबसूरती के साथ चाहिए। अच्छा, जैसे कि कोरोना में ही इसका एक इस शब्द में ही इसके कारण का नाम छुपा है। जैसे कोरोना हम बोलते हैं इंग्लिश में CORONA, कोरोना, लेकिन संस्कृत में देयर इज अ वर्ड करुणा। द मीनिंग ऑफ करुणा इज कंपैशन। द लॉस ऑफ कंपैशन क्रिएट्स दिस काइंड ऑफ करुणा, द लॉस ऑफ कंपैशन। और इसका आंसर भी इसी में छुपा है कि अब जब हम अपने पूरे टोटालिटी से, जब हम करुणा को एक्सपीरियंस करते हैं, जब हम कंपैशन को एक्सपीरियंस करते हैं, पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन में, पूरी ह्यूमन रेस में, जब सिर्फ और सिर्फ संस्कृत का दिस वर्ड द करुणा इज बीइंग एक्सपीरियंस एंड इट इज बीइंग प्रैक्टिस बाय द एंटायर ग्लोबल माइंड, तो इस पूरी दुनिया में एक पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल एनर्जी रेडिएट होती है ना। तो इसमें कारण क्यों आया है ये भी छुपा है इस अपने नाम में, और इसका आंसर भी छुपा है कि ये कैसे ठीक हो सकता है, इसको हम कैसे इससे ओवरकम हो सकते हैं। और आज देख लीजिए कि पूरी दुनिया में जो लोग भी
करुणा को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, नॉट इन द सेंस ऑफ CORONA, नॉट इन द सेंस ऑफ कंपैशन, इन द सेंस ऑफ संस्कृत करुणा. करुणा मीन्स द कंपैशन. तो जो लोग भी करुणा को एक्सपीरियंस कर रहे हैं पूरी दुनिया में, दे आर द लाइफ सेवर. दे आर द लाइफ सेवर ऑफ ह्यूमन रेस. वो मानव जाति को बचा रहे हैं, वो किसी भी लेवल पे करुणा हो. तो आप समझ लीजिए कि हमारे पास अस्त्र क्या है, हमारे पास व्हाट इज द वेपन यू हैव इनसाइड यू, दैट इज द करुणा, दैट इज द कंपैशन. कंपैशन अगर अंदर है, देन यू फाइट विद दिस. अगर आपके पास यू डोंट हैव ए कंपैशन, then you cannot fight with this, that because you become CORONA. The karuna-less people means the Sanskrit karuna-less people is just like a CORONA, corona, the COVID-19. They are the equal, they are the same in different form. तो आप समझ लीजिए कि जिनके पास दया नहीं है, जिनके पास काइंडनेस नहीं है, जिनके पास करुणा नहीं है, वो किस तरह के घातक हैं इस पूरी धरती के लिए. और वो जाने अनजाने में अपना तो ले रही हैं जान, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपनी इस पूरी धरती के ह्यूमन रेस का वो भला नहीं कर रहे हैं. वो कहीं ना कहीं से हर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं से वो डिस्टर्ब करते हैं पूरे गॉड गिफ्टेड डिवाइन कॉस्मिक सिस्टम ऑफ लाइफ पे. तो इस दोनों चीज को मैं आपको कहना चाह रहा था कि कैसे ये दोनों पैरेलल एनर्जी फोर्स एक साथ चलती हैं. एक तरफ इनसिक्योरिटी है, एक तरफ मौत है, एक तरफ डर है और दूसरी तरफ लाइफ रिजोनेट हो रही होती हैं. और इस दोनों को आप साइलेंटली ध्यान के लेवल पे ऑब्जर्व करें. ये दोनों फोर्स को ऑलवेज चलती आई हैं, एक नेगेटिव रहती हैं, एक पॉजिटिव रहती हैं. सतयुग में भी रही हैं, ये द्वापर में भी रहा है, ये त्रेता में भी रहा है, ये कलयुग में भी हो रही है. ये दोनों पैरेलल फोर्स हैं और एक फोर्स अकेला कभी नहीं चलता है, वो दोनों साथ ही चलता है. जब राम जी थे उस समय भी रावण थे, तो ये दोनों पैरेलल फोर्स था. उस समय भी ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन रेस पे भय, डर, इनसिक्योरिटी और बहुत बड़ा एक प्रलय का माहौल था. जब कृष्ण जी थे उस समय भी कंस का और पूरी राक्षस का ये था. तो ये दोनों एनर्जी साथ चलती हैं. अभी की जो सिस्टम है, अभी जो एनर्जी चल रही है, वो इस रूप में है, जो दिख नहीं रही हैं बट हैं. और वो इनडायरेक्टली आपको एक लेसन भी दे रही है, अच्छे मास्टर की तरह, कि घर के अंदर रहो और घर के बाहर निकले तो बिना कारण अगर बाहर निकले तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूंगा. तो इस चीज को बहुत सूक्ष्म रूप से समझना है और ये समझते समझते ये जानना है कि ये पैरेलल फोर्स, दो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी ऑलवेज रहती हैं, रहेंगी. हमें पॉजिटिव पैरेलल लाइन को और थिकर करना है, उसे मोटा करना है, उसे एनर्जाइज करना है. वो हम कैसे करेंगे? ध्यान से. वो हम कैसे करेंगे? टू मेडिटेट. वो हम कैसे करेंगे? टू एक्सपीरियंस कंपैशन. वो हम कैसे करेंगे? टू एक्सपीरियंस ग्रैटिट्यूड, थैंक्स, एप्रिसिएशन. और खास करके अपने स्वयं के जानने के साथ साथ, स्वयं की इंक्वायरी के साथ साथ, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपको गॉड गिफ्टेड एज अ बाय प्रोडक्ट मिलती हैं. आपको इंटेंशनली कंपैशनेट होने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको इंटेंशनली काइंडनेस एंड जेनरॉसिटी को एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है. क्योंकि आप जैसे ही द मोमेंट यू एक्सपीरियंस योर ओन सेल्फ, the moment you experience your true awareness and you become the awarer of the awareness, you merge with the awarer of the awareness, then these beautiful divine cosmic quality becomes your true nature. क्योंकि उसका बेसिक नेचर यही हो जाता है ना. आइए हम लोग सब लोग ध्यान करें, आंखें बंद करके बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाएं शांति से. अपने आप को स्पेस दें, अपने आप को एक रिलैक्स पैम्पर करें मानसिक स्वयं से. द मेंटल appearance, the mental being is pampering its own existence. अपने सूक्ष्म और ममत्व भरे अवेयरनेस से अपने स्वयं को पैम्पर करें. पैम्पर मीन्स जैसे एक माँ अपने छोटे बहुत अबोध
बच्चे को अपने गोद, अपने गले, अपने सीने से लगाती है और उसे प्यार करती है। ठीक उसी तरह अपनी अवेयरनेस से अपने सेल्फ को पैम्पर करें, अपने सेल्फ को पैम्पर करें मीन्स अपनी चेतना में आंखें बंद करके अपनी चित्त से अपने स्वयं को ही अपने चित्त में बिठा के उसे गले लिपटें। एहसास करें कि आपका स्वयं आपके अबोध बालक को, अपने बच्चे को अपनी गोद में बिठा के उसे चूम रहा है, उसे हग कर रहा है, उसे प्यार कर रहा है और उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा है। Who is the observer? You. To whom you are observing? You. Where it is happening? In you. And where is the being? Being is the platform, being is the stage where you are merging within you. Simply just aware. बिकॉज जब हम अपनी मानसिक पैम्परिंग में अपने स्वयं को पैम्पर करते हैं, देन वी आर क्रिएटिंग एक्स्ट्रा कवच फॉर आवर ओन सेल्फ. This is even more important than N91 mask. It is, I am giving you the wisdom of protecting yourself by covering your cosmic mask, the cosmic energy field, which is pampering and protecting you just like your own child, your own baby, infant baby, जैसे 6-7 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा. आप अपने स्वयं से, अपनी स्वयं के अवेयरनेस से, अपने स्वयं के अस्तित्व के स्वरूप को गोद में लेके उसे हक करें, देखें, आंखों में आंख डालें और कहें, आई एम देयर फॉर यू. आई एम देयर फॉर यू. डोंट वरी. You are always within me. You are always in my lap. You are always in my consciousness. You are close to my existence. You are most protected here. Just like a mom is saying to his baby, her baby, that don't worry, nothing will happen. I am here. So you are becoming mom of your own existence. Become a mom of your own existence. And you, as extension of baby, the symbolic baby of yourself is in the lap of your own lap. You can feel the sensation in your entire body. You can feel the sensation in your entire body that some cosmic divine energy
is touching you, pampering you, and squeezing you in her lap. You can experience with the fingers of your leg. Feel the sensation, feel the motherly love is touching. And the motherly love is not your mother, the motherly love is your own source. You yourself is the mother of yourself. Because whole life you are taking care of yourself. So you are the cosmic divine mother of yourself and cosmic divine father of yourself. So you are nowhere out. You are always in, always with your father and mother. And this cosmic divine energy is always engaged to protecting you. Think of the sensation in your lower leg. Some cosmic energy hand is touching you and doing small massage and saying, don't worry. Think of your thighs. Think of your belly. The cosmic divine, your own energy hands is touching you. Your palm is touching your own baby and say, don't worry, I'm here. Touch your chest, your arm, your neck, your whole face, your hair, and kiss in your Agya Chakra. Hug yourself. And it is the action, it is the mental pampering of the body of Shiva from the body of Shiva. Body of Parvati, the Shakti, from the body of Parvati. These two energies playing beautiful role and pampering its own existence. By doing this, you feel some light, energy, magnetic field is radiating throughout your existence, biological existence, and you are being protected because your unseen, your formless being is covering yourself. Your formless being is covering yourself, and the formless being is the most powerful source of this entire universe. So I am letting you sleep and sit in the lap of Shiva, and Shiva is pampering its own biological existence just like a baby and just like a mother, just like a father. Be in the state of pampering. Now we will chant two mantras, Om Aham Balakam and Om Aham Shivam. Om
मैं अपने स्वयं का ही बालक हूँ और मैं अपने स्वयं का ही शिवोहम हूँ। शिवोहम। अहम बालकम्। मैं अपने स्वयं का बालक, स्वयं का शिशु स्वरूप और मैं ही अपने स्वयं का शिवोहम। मीन्स पुत्र भी मैं, पिता भी मैं, पुत्र भी मैं, मात्र भी मैं। केयर करने वाला भी मैं और केयर करवाने वाला भी मैं, सुरक्षा देने वाला भी मैं, सुरक्षित रखने वाला भी मैं। और सूक्ष्म रूप से अगर जब आप अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोचेंगे तो पूरी जिंदगी में सूक्ष्मता के साथ यही हो रहा है। नोइंगली अननोइंगली आप इल्यूजन में रहते हैं कि कोई अदर आपका सुरक्षा कर रहा है, कोई डिफरेंट सेपरेट फोर्स आपकी सुरक्षा कर रही है। ये हमारी इल्यूजन है। इट इज यू ओनली हु इज प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। It is you only who is being protected by yourself. यहाँ दोनों जगह आप ही हैं, प्रोटेक्ट होने वाले और प्रोटेक्ट करने वाले। और अपनी आंखों से अपनी आंखें मिला के देखना, थोड़ी देर अपनी नजरों को देखना, उसे प्रणाम करना, थैंक्स करना और धन्यवाद देना। Om Namah Shivaya. Thank you so much. Be in the state of this mode. Be your own protector. No one else can be protect you. कोई दूसरा आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। कोई भी दूसरी विधि आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है सिवाय आपके, सिवाय आप अपने स्वयं के। आप खुद अपने आप के प्रोटेक्टर हैं और खुद प्रोटेक्ट होने वाले हैं। ध्यान में रहें, शिव जाप करें, अपनी सूक्ष्मता को एक्नॉलेज करें, सूक्ष्म रूप से अपने आनंद में रहें, बालक स्वरूप रहें, पितृ स्वरूप रहें, मातृ स्वरूप रहें, प्रकृति स्वरूप रहें, चैतन्य स्वरूप रहें। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।